ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଅଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେଇ ବିଚାରରେ ତୁମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି ତା ଭାବି ଦେଖୁନାହ? ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇକି କହିବ, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି? ରେ କପଟି, ଆଗେ ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହୁଛି କି ବାକ୍ୟ କହୁଛି କି ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର ଯଦି ତମେ କରୁଛ, ତମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଆଖିରେ କୁଟାଟି ମାନେ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ତ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ? ଯଦି ମାର୍କ 7 ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା, ମାର୍କ 7 ପର୍ବ 20ରୁ ପଢିବି 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ସତତା, କାମକତା, ଈର୍ଷା, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, এই ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ବାଇବଲରେ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର କର୍ମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ହଁ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖୁଛୁ କି ହଁ କିଏ ମିଛ କହୁଛି, କିଏ ରାଗୁଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି କୌଣସି ହତ୍ୟାକାରୀ ନାହିଁ କି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ସେ ହତ୍ୟା କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତା ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାହା କାମାଭିଳାଷ, ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର। ପ୍ରକୃତରେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷ ବାହାରୁଛି ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଦବେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ଯିଏ ନିଜର ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ତାର ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ବିଚାର କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନ 8 ପର୍ବରେ, ଜହନ 8 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଟାଣି ଆଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ହଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡିଅଛି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ କଣ ଆନ୍ସାର ଦେବେ। ଯଦି ଯୀଶୁ କହିବେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆଉ ତମେ ତ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହୁଛ, ମଶାଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲା? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ତମେ କହୁଛ ଛାଡି ଦିଅ। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦଉଛ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ କହିବେ କି ନାଇଁ ତମେ ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ସେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି ତାକୁ କାହିଁକି ତମେ ଛାଡିବ? ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ପାପୀ ମରି ଯାଉଛି, ଆଉ ତମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରତ ବୋଲି କହୁଛ, ତମେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନ, ତ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଥ୍ୟା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ପଥରରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ଯଦିଓ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ କାମାଭିଳାଷ ଥିଲେ। ହଁ କାମାଭିଳାଷ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ହଁ ସତରେ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ହୁଏତ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରିକି ସେ ବାହାରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ମାନେ ଦେଖେଇ ନପାରେ।
हाँ लोक मैंने शत्रु थाई प्रकृति में गिफ्ट को आदान प्रदान करती से स्टेज रे मंच उपर लोक आगे से प्रकृति में परस्पर को कुंडे पकाती हाँ मनीष निजर हृदय को से माने निजर व्यवहार को से प्रकृति में दबे पार कि मनीष निजर हृदय के लुचेई पार ना से प्रभु जो कहते तुम मान मधुर जो निष्पाप से प्रथम पथर फोपाड़ू से समय जड़े जड़े से जगह छाड़ी से चलीगले कौन पाई आम देखिपार प्रकृति में कि मनीष प्रकृति में मनीषर हृदय भर कुचिंता बाहर आज परमेश्वर प्रकृति से हृदय थिबा कुचिंता को प्रकृति में विचार करुँच हाँ जो मुझे निजक देखुली आज जो वाक्य को आम देखुचु हाँ तुम भाई आखिर थी कहीं कुटाटे को देखुच तार्थ जदि आम जनकर दोष को देखुचु तार्थ परमेश्वर कहते तुम निज आखिरे कड़ी काठ अच्छे और यहाँ प्रकृति असंभव जेहेतु जदि आप कुटा को देखिए कुटा हूँ बहुत छोट विषय माने बहुत माने गोटे काठ गुंड माने काठ गुंड बहुत छोटिया विषय आखि भीतर रही पार आम बाइक चलाऊँ बेले आखिरे छोट माने धूली कणिका ना गोटे कुटा पड़ जाऊे किंतु प्रभु कहते तुम भाई आखिरे थी कुटा कहीं देख तुम निज आखिरे कड़ी काठ अच्छी भाभी देखुना भाभी देखुना बोले बाइबल लिखाई तो कड़ी काठ माने बहुत बड़ गंडी आखिर साइज जब बहुत छोट भितर के गंडी के रही पार ना तो जीशु कहीं सेमती कहले तार तो तुम अन्य को संशोधन करने चाहूच कि तुम आखिरे प्रकृत से कड़ी काठ अच्छे तो जो मुझे वाक्य को देखुची तो प्रभु कहू चाहते कि मो पाखे कड़ी काठ अच्छे हाँ या अर्थ कौन सत कथा जो बाइबल को देखुचु कि मनीष कहीं पापी हाँ अनेक आम भावुँ मनीष जेहेतु पाप करुच्ची से पापी किंतु बाइबल रे स्पष्ट रूप लिखाई मनीष पाप करी पापी है बरं मनीष जगत मनीष भितर पाप दिने प्रवेश कर रोमियो 5:12 पदरे लिखाई अथवा जपरी जड़े लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश कला से प्रकार मृत्यु समस्त लोक प्रति घटिला जन समस्त पाप गले तो लिखाई कि जड़े लोक द्वारा पाप जड़े लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश कला ये जड़े लोक होते प्रकृति में आदम सहित आम कौन संपर्क आप जानते आम समस्ते आदम भितर थी जमी सांगिया जमी अच्छी टाइटल तो प्रकृति में बापा टाइटल पिला पाख आसो नाती मान पाख आसो जेजेबापा पाखे से सामान टाइटल ठीक सेमती आज देखुच मैंने जेहेतु आदम पापी हो गले तो पिला पापी पिला पापी पिला पापी तो जगत में जड़े भी धार्मिक लोक ना ए उक्ति परमेश्वर जगतर सब लोक को देखिए कही ना बरं प्रभु से उक्ति को प्रकृति में आदम को देखिए कहले जब आदम भीतर पाप प्रवेश कला समस्त प्रकृति में पापी हो सारी तो सतरे जो आम देखुचु कि मनीष भितर जेतु पाप प्रवेश कर मनीष पापी है जेहेतु मनीष भितर पाप प्रवेश कर सारी मनीष हृदय भितर मिछ राग लोभ हिंसा घृणा काम काम अभिलाष ये समस्त विषय प्रकृति में बाहरी आसुची तो यही समस्त विषय को आम संयम करने चेष्टा करुँ आम कंट्रोल करुचु तो आम निजक भल बोली भावुचु तो सतरे ए जगत में आम मापदंड को देखा जे भूल काम कर भूल जे भूल काम कर ठीक कि प्रकृति में प्रकृति बाइबल मापदंड को देखा जे भूल काम करुचे से भूल जे भूल काम करूनी कि भितर भितर भूल हृदय को रखी से हूँ कपटी हाँ परमेश्वर जीशुख्रीष्ट प्रकृति में माथ्यू 23 पर्व से शास्त्री फारसी मान को बहुत अनुजोग कले से कहले हाय दंडर पात्र कपटी शास्त्री और फारसी माने हाय दंडर पात्र कपटी शास्त्री फारसी माने तुम्हें गिनार थालीर बाहर सफा करुच किंतु जे बाहर सफा माने तैयारी कले से कौन भीतर को तैयारी करना तो प्रभु कहते तुम्हें शुक्लीकृत समाधि सदृश हाँ समाधि रे चून लगाई तो बाहर बहुत सुंदर देखा कि भितर मढ़ अच्छी तुम्हें लोक आगे निजक धार्मिक देखा चेष्टा करुच कि तुम हृदय भितर प्रकृति पाप अच्छी हाँ सतरे आम कौन पाइपु कि मनीष प्रभु जो शास्त्री फारसी देखुं जो से बाहिक भाव में व्यवहार बहुत भल अच्छी बाहिक देखा जा प्रकृति में व्यवस्था को फॉलो करुँच किंतु परमेश्वर कौन सी दृष्टि नहीं से बाह्य विश्व को देखिकी से प्रशंसा करेंगे बरं प्रभु से अंतर को देखी से बहुत घृणा करी से कहते अनुजोग कहते कि हाय दंडर पात्र कपटी शास्त्री फारसी माने
प्रभु कौन डायरेक्टली तुम्हें दंडर पात्र कपटी शास्त्री फारुसी माने सत कथा मुझे कहवाई चाहूँगी आज प्रत्येक मनुष्य भितर पाप प्रवेश कर सारी अच्छी से मनुष्य प्रकृति में पापी थी से पाप करुच्ची से पाप कर पापी है तो जो आम देखुचु कि प्रकृति आम अन्य को विचार करुँ मुझे पास्टर हो पास्टर है प्रकृति में बंचुची मो सम्मुख से जगह मो स्त्री अच्छा मो पिला मैंने अच्छा मिशन स्टूडेंट मैंने अच्छा आम चर्च रे डिकन एल्डर अच्छा भाई भाई मैंने अच्छा से व्यवहार को देखिए प्रकृति से जगह माने विचार करें हाँ कहीं से भाई वाक्य शुणुना कहीं प्रकृति में बर्न अगेन होगी प्रकृति में ऑफरिंग करूना सुसमाचार मन ना कहीं प्रकृति में सब जगतिक चिंता को लेकिन प्रकृति में बंचुंट कौन प्रकृति में मिशन स्टूडेंट मैंने यही प्रकार मनोभाव को लेकिन बंचुंट कौन मो स्त्री प्रकृति में प्रकार चिंताधारा करके प्रकृति में बंचुंट मुझे प्रकार अनेक को विचार करें हाँ जो आम विचार करुचु तो हूँ तो आम प्रकृति में ठीक देखा जाई पारू किंतु आज बाइबल कौन कहे तुम्हें कहीं अन्य को विचार करुच 7 पर्व 1 जो देखिया माने तुम्हें माने जेपरी विचारित न हेबो एथिपाई विचार कर नाही प्रभु कहउछन तुम्हें जंती विचारित न हेबो एथिपाई तुम्हें विचार कर नाही तार जतरा हमें अन्य को विचार करूछु तार अर्थ प्रभु हमको विचारित करूछु विचार करूछु हाँ 2 पद कारण जो विचार रे विचार कर सेही विचार तुमने विचारित हेबो पुनी जो मापरे माप कर सेही मापरे तुमको मोपाई दिया जीवो हाँ जदि आम आगू जा पूर्व गोटे वाक्य को देखा जहन 3 पर्व से जगह आम देखिपर जहन 3 पर्व 17 पद आ 18 पद जेणु जगतर विचार करने निमंते ईश्वर अपना पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरी ताहांको द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई जो ताहांको प्रेरण कले जे तांड्रे विश्वास करे से विचारित हुए नहीं जे विश्वास करे नहीं से विचारित हो साराणी कारण से ईश्वर अद्वितीय पुत्र नाम विश्वास करना पाइपरचु जीशुख्रीष्ट जगत को कहीं आसिले 17 पद स्पष्ट में लिखा है जीशुख्रीष्ट जगत को किए आसीना जगतर विचार करने कौन पाई प्रभु आसीना जगतर विचार करने कारण से परमेश्वर से सृष्टिकर्ता से मनीष को तैयारी कर मनीषर हृदय विषय से सठिक भाव जानते कि मनीष हृदय भितर पाप अच्छी से प्रभु प्रकृति में पापरू मुक्त करने से जीशुख्रीष्ट को पठेले से पापरू उद्धार करने से प्रकृति जीशु को पठेले मो प्रकृति को जदि मुझे गोटे ख्रीस्टान परिवार जन्म हाँ मुझे चर्च को जाऊँगी प्रभुर वाक्य को शुणुली गोटे भल पिला चेष्टा करुँगी हाँ मु मिछ कहूँ मु रागुची मु लोभ करुच्ची हाँ टिके मु प्रकृति में भूल करुच्ची और जब मुझे समस्त विषय परित्याग करी ताले मु परमेश्वर निकटवर्ती हो पारि गोटे भल पिला पारि प्रभु मो पाप क्षमा कर प्रभु मु पाप करी ना कि मो जीवन को देखुची मो छोट बेलू ही बापा माँ पकेट रू टंकाटे 2 टंका चोरी करुली आठू नहीं दांती कि खाऊली हाँ प्रकृति में माँ सब दौन पैसा तो प्रकृति में बजार को गले जिनस आनीगले से जगह माने कम जिनस आनिकी अधिक पैसा नहीं जाऊली बाकी पैसा को रखी दौली अन्य मान बारे आंब पिजुड़ी समस्त विषय चोरी करी तो जो मुझे देखुची चर्च को जाए वाक्य शुणे चोरी करना मिछ कहना लोभ करना तो मोर हृदय से माने दोषीकृत हृदय रोला अरे मु प्रकृति में भूल लोक ए प्रकार काम करुच्ची मु जो पाप करुच्ची किए जानी ना किंतु परमेश्वर जानी प्रभु मत दया कर प्रभु मत क्षमा दियो मुझे बढ़ी 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 गली मुझे जगह टंकाटे 5 टंका 5 टंका 10 टंका 10 टंका 50 टंका चोरी करने लगे 50 टंका 100 टंका 100 टंका 500 टंका हाँ से जगह कॉलेज पढ़ुली 500 टंका 1000 टंका पर्यटन चोरी करुली तो जो मो पिला चर्च को जाए वाक्य को शुणुली कि मो हृदय के निजक पाऊन जी कि पाप को बंद करुच्ची हाँ मुझे जान नी कि मो पाप कहीं करुच्ची और समस्ते कहते पाप कर ना पाप क्षमा माग पाप कर ना हाँ सब ठीक कथा से मु भावुली मु तो पाप क्षमा मागुची मोर भूल हो पाप करुच्ची मु पाप करने कथा ना कि गोटे दिन जो बाइबल रे सत्य विषय को शुणिली कि मनीष कहीं पाप करे जदि आम निष्पत्ति नौचु मु पाप करी ना कि मनीषर हृदय भर पाप भयास कहीं बाहरिक आसुची कहीं पाप करी निष्पत्ति ना पाप माने चिंता आसवा बंद होनी सीट मुझे गोटे विषय को पाई पारे ओ आदम भीतर पाप प्रवेश करी
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ କହେ ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲୁ ମାର୍କ 7 ପର୍ବର 21, 22, 23 ଆମେ ପଢି ସାରିଲୁଣି। ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମଣିଷର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ମଣିଷର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, କାମକତା, ଏଷତ୍ରୀ, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଶଠତା, এই ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛି ବାଇବଲ ଯେ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ? କେମିତି ସେମିତି ବାଇବଲ କହିପାରୁଛି ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ? ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାପରୁ ପ୍ରକୃତିରେ କୁଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେ ତାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାରିତ ହେବା ନାହିଁ। ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାର ତ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି କହିବି, 3ଟା ବାକ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 11 ପଦ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 11 ପଦ ଦେଖିବା ମାନେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଣୁ ଯେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ବୋଲି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି। ଯେଣୁ ଯେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଏକ ବଚନ, ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ବାପା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାରେ ନାୟକ, ତାହେଲେ 2 ଭାଇ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, 2 ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ନାୟକ ହିଁ ହେବେ। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ହବ, ଜଣେ ନାୟକ ହବ, ସେଟା ଇମ୍ପସିବଲ। ଯଦି ବାପା ଯଦି ନାୟକ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ହେବେ। ଯଦି ବାପା ଯଦି ପବିତ୍ର ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। କେତେ ପବିତ୍ର? ଯେତିକି ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ସେତିକି ପବିତ୍ର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ନିଜେ ହଉନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପବିତ୍ର କରେ, ତାର ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ କେମିତି? ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର କରିଥିବାର ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ। ତ କେମିତି ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ବଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ କି ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏବ୍ରୀ 9 ପର୍ବର 22 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ଏବ୍ରୀ 9 ପର୍ବର 22 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫା କରୁଛୁ, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାବୁନ ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସାବୁନକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ହଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବାଇବଲରେ ପାପ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ପାପ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ପାପରୁ ସଫା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ମିଛ, ରାଗ, ଲୋଭ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଘୃଣା, ହିଂସା, କପଟି ଯାହା ବି ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀ ହୁଏ। ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଆମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ରୁଟିକୁ ଭୋଜନ କରୁଛୁ। ହଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେତେ ଥର ତମେ ଏଟାକୁ ପାନ କରିବ କି ଭୋଜନ କରିବ ମତେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ତମେ କରିବ। ତ କଣ ବୋଲି ଆମେ ମନେ ପକଉଛୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଗଲା, ସେଠୁ ରକ୍ତ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ମରାଗଲା, ସେଠୁ ରକ୍ତ ଆସିଲା।
आगर गोड़े कंटा मरा गला से रक्त बही आसला छाती गोटे सैनिक भूसी देले से रक्त पानी आसला देहरे प्रकृति चाबुक प्रहार करा से प्रकृति क्षत विक्षत सब रक्त आसला तो जीशु जो क्रूसरे मृत्युवरण कर समस्त रक्त को झरई से प्रकृति मृत्युवरण कर तो प्रकृति क्रूसरे झरुवा से रक्त क्रूसरे जीशुଙ୍କର झुलुवा से क्षत विक्षत शरीर हूँ चिन्ह पाप मोचन हो सारी अच्छी आम पाप धौत हो सारी अच्छी तो सत कथा से लिखाई एब्री 10:10 पदरे कौन लिखाई जीशु ख्रीष्ट शरीर एका थरके उत्सर्गीकृत होगा द्वारा बलि होगा द्वारा से इच्छा तो पवित्रकृत होइछु देखो तो एब्री 10:10 केमती आम पवित्र होइछु जीशु ख्रीष्ट शरीर बलि होगा द्वारा ये पाई पारुछु कि आमे किछि कलु आमे जे प्रार्थना कलु आमे जे दान देलु आमे जे प्रकृति निजर व्यवहार को परिवर्तन कलु सेमती विषय नाही किंतु आज जीशु प्रकृति निज शरीर को बलि देले जीशु प्रकृति क्रूसरे प्रकृति रक्त को झरेले से विश्वास करुचु हाँ से दिन बही से रक्त से दिन जीशुकर से झुलुवा से क्षत विक्षत शरीर हूँ प्रमाण मोर पाप धौत हो सारी अच्छी मु पवित्र हो सारी अच्छी जो विश्वास करिकी आमे प्रभु जो सेवन करुचु सतरे जो देखुचे प्रभु प्रकृति आमको जीशु पवित्र केमिति करिसथि एब्री 2:11 जेणु जे पवित्र करती जीशु पवित्र करती केमिति करती से केमिति करती से निज शरीर को बलि देगी निज रक्त द्वारा आम पाप को धौत करिकी से आमको पवित्र करती आउ से आम समस्त पाप को से धोई दे सारी अच्छा तो जो आम देखुचु ए विषय को सतरे मुझे कहवाई चाहूँगी मुझे निजक देखली सतरे वाक्य आगे मुझे पारिली जदिव मो लाइफ रे के व्यभिचार करनी किंतु मु कामाभिलाषी मो भीतर से जौन अभिलाष अच्छी मुझे पारि विषय जदिव मु क्या हत्या करनी किंतु मो मन भीतर मुझे लोक हत्या कर सारी तो जदिव प्रकृति में देखुचे मु अनेक समय चोरी करने चाहिए किंतु चोरी करनी अनेक समय मु प्रकृति बहुत भूल करने चाहूँगी किंतु लोक मान प्रति कनसीयस हो प्रकृति से काम को मुझे करेनि अनेक समय गिर्जार बसवाई मुझे चाहिए किंतु बापा माँ खुशी पाए पास्टर जो प्रशंसा कर आग लाइन रे बसुली हाँ मो घरे थिला घरे मु टीवी सीरियल देखा चाहूली सतरे आज मोर घर लोक मैंने कि मोर पुरातन पास्टर पूर्वतन पास्टर कि गाँ लोक मैंने जानी पारे जे मु केमती लोक मोर व्यवहार को देखिकी आग लाइन रे बसीची भल मन रे वाक्य शुणुची भल पिला से कि आज परमेश्वर मत जानुछन मु किए से प्रभु जॉन 8 पर्व जो स्त्री को प्रकृति व्यभिचार कर्म कर समय धरिकी लोक मैंने नहीं आसते विचार करने चाहूले से किंतु जीशु कहले तुम मान मध्य जे निष्पाप ता अर्थ कौन हाँ जे स्त्री लोक पाप कर से पापी नहीं समस्ते पापी आम पापी मान को उद्धार करने तुम्हें पापी जो तुम पाखे पाप नहीं पत्थर मार आम देखिपार समस्ते से जगह छाड़ी चलीगले केवल जीशु आ से स्त्री लोक मझे रहिले जीशु कहले गो नारी से कहती कई कौन तुमको दंडनीय बोली विचार कले ना से कहे ना प्रभु कहीं ना मुझे तुमको दंडनीय बोली विचार करूना जाओ आज ठार पाप करना मुझे तुमको दंडनीय बोली विचार करूना अर्थ कौन जीशु ताकू विचार करूना जीशु ताकू क्षमा देले आज मुझे कहवाई चाहूँ से पापी किए से पापी हूँ मु प्रभु को हृदय को न जानी मु कहली प्रभु मते क्षमा कर अन्य मान विचार करुली बाइबल कहे तुम्हें अन्यर आखिरे कुटाटी कहीं देखुच तुम निज आखिरे कड़ी काठ अच्छी तो चलो देखा माथ्यू 7 पर्वर 5 पद रे कपटी प्रथमे सॉरी अपना अपना आखिरु कड़ी काठ बाहर कर पकाओ तापर निज भाईर आखिरु कुटाटी को बाहर कर स्पष्ट रूपे देखी पारिबो ताले यार अर्थ देखंतु बाइबल हमको कहूँ के कहि पारिबानी परमेश्वर कहउछन्ते मते कि तो आखिरे कड़ी काठ को बाहर कर पका माने आम आखिर आम कड़ी काठ केमती बाहर कर कड़ी काठ माने कौन कौन ताहले एटा होची प्रकृति रे पाप और लोक किए अच्छा जगत रे जे कि निज पाप को बाहर करि पारिबो ताले जीशु कहीं पाप उद्धार करने आसिले मनुष्य पाप को पाप उद्धार करने से असंभव से आम देखिपारु
मनुष्य करि पारिबो नाही मु मते चाहूतली पापरु मुक्त हेबा पाई प्रार्थना करिकि भल जीवन बंचा किंतु मो पापी ही थिली किंतु गोटे दिन देखि पाली जे जेणु जे पवित्र करंती यीशु पवित्र करंती हाँ से निज शरीर को बलि देकी से निज शरीर को बलि देले से क्रूस रक्त झरेले से रक्त द्वारा मोर पाप को सफा कर से पवित्रीकृत करी पवित्रीकृत होई अछि तार तो मु किछि करिनी प्रभु पवित्र तार तो प्रभु जानि छथि मु केते दुष्ट मु केते कपटी मु केते कदर्य ताले ए प्रकार लोग प्रभु कोन गले प्रभु क्षमा देले प्रभु क्षमा देइछन्ते बोले मु क्षमा पाइछि प्रभु पवित्र करछन्ते बोले कि मु पवित्र हेछि मु धार्मिक हेछि तो तार अर्थ जदि एई जेतल को मु विश्वास करू जदि हम देखुछु जोहन 3 पर आउटी देखे दियंतु जोहन 3 पर्वर से लिखा है 17 18 आम पढ़िलु आज 18 पदरे लिखा है जे विश्वास करे से विचारित तो हुए नहीं जे विश्वास करे नहीं से विचारित तो हो सारा तो जब देखुचा माने जे ताहांटे विश्वास करे तो काठारे जे जीशु ठारे विश्वास करे जीशु ठारे कौन ले विश्वास करे हाँ जीशु ख्रीस्ट मो पाप पाई जगत को आसिले जीशु जन्मला समय भविष्यवाणी थिला से समस्त पापरु परित्राण करिवे 30 वर्ष बयस रे से जदिओ पवित्र थिले धार्मिक थिले से बाप्तिस्म को नेले ताऊ काहे कि बाप्तिस्म नेबार थिला से तो पवित्र आत्मा अग्नि रे बाप्तिस्म देबे बोली शास्त्र रे लेखा थिला बाप्तिस्म जन ताऊ कहउछन्ती आपण मते बाप्तिस्म देबा दरकार आपण मो पाखु आसुछन्ती किंतु जीशु बाप्तिस्म नेबा पाई आस्थिले काहे कि काहे ना से जगतर पापरु परित्राण करिया पाई हेले से जगतर पाप को ग्रहण करिया पाई थिला जेतु पुरातन नियम रे मेंढार मुंड ऊपर हाथ रखिवा द्वारा पाप स्थानांतरित होतिला से जीशु चाहुतले बाप्तिस्म जन जेपरि तांको मस्तक ऊपर हस्त रखिबे आ जगतर पाप को से नहीं से कालवरी क्रूस रे से मृत्युवरण द्वारा निज शरीर को बलि देवा द्वारा आमान को पापरु मुक्त करि पारिबे से समस्त रक्त को झरेबा द्वारा आप बाप को धौत करि पारिबे से देखुछु आम जीशु ख्रीस्ट 33 वर्ष बयस से मृत्युवरण करियछन्ती आउ से 3 दिन गला परे पुनर्बार पुनरुत्थित होइछन्ती से आम पाप पाई मरिछन्ती आमको धार्मिक करिया पाई उठिछन्ती रोमियो 4:25 जदि आपण देखिबे से जीशु आमान को अपराध निमंते समर्पित हेले पुणी आम माने धार्मिक निमंते उत्थापित हेले जीशु काहे के मले मो पाप पाई समस्ते कहते जदि जीशु मो पाप पाई मरिछन्ती ताले जीशु मो पाई ही उठिछन्ती ठीक अछि मो पाप निमंते से मरिगले रोमियो 4:25 पद आ से काहे उठले मते धार्मिक करिया निमंते से पुनरुत्थित हेले हेले लेखाइ हेले माने ऑलरेडी करि सारी अछन्ती तो जतलोक हम विश्वास करू जे तंत्र विश्वास करे से विचारित तो हुए नहीं तो जदि आम पाप करिछु जदि आम भीतर पाप विलास अछि विश्वास करंतु कौन बोली हाँ जीशु मोर पापरु परित्राण देवा पाई से जगत रे जन्म नेले से 30 वर्ष बयस रे से माने बाप्तिस्म नेले 33 वर्ष बयस रे से मृत्युवरण कले 3 दिन पर से पुनरुत्थित होई अछन्ती से मते धार्मिक करिया निमंते पुनरुत्थित हेले से मते धार्मिक करि अछन्ती मु पवित्र अछि जे विश्वास करिवो से विचारित हुए नाही विश्वास कर विश्वास करेंगे से सतरे आम अन्य को विचार करू तू कहीं मिछ कहू तू कहीं चोरी करू मु आज ए पास्टर चर्चर भाई गुण को विचार करुच्ची कि प्रभु मत कहले तू जदि अन्य को विचार करुचु ताले तो आखिरे कड़ी काठ अच्छी प्रथम से कड़ी काठ को बाहर कर पकाओ प्रभु को सम्मुखें ठिया हेली मो चर्चर भाई गुण दुष्ट ना मु हूँ गोटे कदर्य दुष्ट जार पाप कि प्रभु जाणिकी से क्षमा कर धौत कर मत पवित्र कर विषय को पाई पार्ली मो हृदय थिबा मो आखिरे थिबा कड़ी काठ दूर हो गला मो आखिरे थिबा कड़ी काठ दूर हो गला प्रभु जीशु जेपरी आमान को प्रेम कले से जीशु हृदय को लेकिन मु चर्चर मेंबर मान से जगह प्रेम कर पार्ली हाँ से किसी दोष नहीं हाँ हृदय जदि राग रखिकी विचार रखिकी जदि आम लोक कथबार्ता होचु आम कपटी जी कि निज आखिर कड़ी काठ के बाहर कर माने बाहर करनी आज बाइबल कहूँ कि भाईर कुटा काटिया सेकेंड निज आखिर कड़ी काठ को बाहर कर पकाओ ए कड़ी काठ कौन ए शैतान आम हृदय को अंध कर देछि चिंताधारा द्वारा आज प्रभु तक सत्य वाक्य द्वारा प्रमाणयुक्त वाक्य द्वारा कहते मु तोर पाप को धौत कर सारी अच्छी मु पवित्र कर सारी अच्छी तू पवित्र हो सारी अच्छु विश्वास करुचे आज आपण माने जे केबे
आज शुणुंट तार तो विस्तार आप पाई पारे कि निज आखिर कड़ी काट बाहर कर अर्थ कौन आमको कड़ी काट काढ़ार अच्छी ना जीशु आम सब पाप को धोईदेले आप आमेन कही पारे कि आमेन हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सतरे प्रकृति आमे आमर पाप को काढ़ीनु जो मो आखिरे देखुली मो आखिरे सब दुष्ट अच्छी सब मंद विषय अच्छी कि जो प्रभु जीशु आखिरे देखुची प्रभुंकर हृदय समस्त प्रति प्रेम अच्छी से जक्ष जे कि पापी बोले जाको लोक मैंने कहूले प्रभु जीशु प्रेम करुँच आज तो घरे मु रही घरे आज परित्राण उपस्थित अच्छी मुझे चाहूँगी आज परमेश्वर आम समस्त प्रेम आखिरे देखुं मत प्रेम आखिरे देखुं मो स्त्री को मोर पिला मोर मिशन स्टूडेंट मानक मोर पिला चर्चर सब भाई भाई मान प्रभु प्रेम कर तो मो हृदय कौन बाहर दरकार मो हृदय विचार बाहर ना जीशुकर प्रेम तो तेणु मुझे वाक्य को बुझीपारि कि हाँ तुम्हें रे कपटी अर्थात तुम निज आखिर कड़ी काठ को बाहर कर पका आज ता अर्थ कौन मत मुझे विश्वास करी कि परमेश्वर मत नूतन सृष्टि कर प्रभु मत पवित्र कर धार्मिक कर प्रकार परमेश्वर समस्त को धार्मिक कर लास्ट गोटे वाक्य को देखिए प्रथम जन 4 पर्वर 1 पर्वर 4 पर्वर 17 पद प्रथम जन 4 पर्वर 17 पद देखिए माने से लिखाई एथिरे प्रेम आम मध्य सिद्ध होइछि जे विचार दिन आम साहस प्राप्त हेबु कारण से जेपरी अच्छी आम ए जगत रे सेपरी अच्छु एथिरे प्रेम आम मध्य सिद्ध होइछि हालेलुया हाँ परमेश्वर गौरव पातु एथिरे प्रेम आम मध्य सिद्ध होइछि हाँ ख्रीष्टन को प्रेम आम मध्य सिद्ध होइछि तार जीशु आमको जो प्रेम कले आम सिद्ध हो सारी अच्छु से प्रकार प्रभु चाहते आम द्वारा अन्य माने सिद्ध हूँ जी कह प्रार्थना करिया प्रभु धन्यवाद प्रभु समय प्रभु सतरे पिता बाइबल देखु आम अन्य को सेठी संगे संगे विचार करूँ निजक विचार करूँ अन्य मान विचार करूँ अन्य मान भूल आम आखिरे देखा जाऊँ आम ए प्रकार विचार कर व्यस्त अच्छु प्रभु आम निजर भूल को आम देखी पार्नु कि प्रभु तुम जो बाइबल आम समस्त को कौच कि रे कपटी प्रथमे तुम निज आखिर कड़ी काठ को बाहर कर पकाओ तापर तुम भाईर आखिर कुटाटी को बाहर कर पारे सहज देखिपार हाँ प्रभु तुम्हें कहवाई चाहो तो पाखे कड़ी काठ अच्छी तू प्रथम बाहर कर पकाओ सतरे पिता आम पाप जहाँ भी थिला प्रभु तुम्हें सब जाणिकी मत प्रभु तुम्हें क्षमा दे तुम्हें निज पुत्र को तुम्हें बलि दे हाँ प्रभु बाकी आम देखिपार प्रभु कारण से केवल केवल एक बल उत्सर्ग से पवित्र लोक मान चिरकाल सिद्ध कर प्रभु तुम्हें जीशु को बलि दे आमको सिद्ध कर आज मत समय एशिया कैंप अनेक तुम्हें सिद्ध कर अनेक तुम्हें पवित्र कर हाँ प्रभु अनुग्रह कर जपरी ए प्रकार सत्य प्रेम को नहीं जपरी आम प्रेम को बांटी पारू हाँ प्रभु वाक्य प्रमाण दौ प्रभु तुम्हें प्रेम प्रभु आम सिद्ध होइछु विचार दिन आम साहस प्राप्त हूँ तुम्हें गौरव पाओ ये समय दल धन्यवाद सुना मागिली आमेन बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।